I heard this song, Mass Recruiter सबका मसीहा. I think I also heard it. Java तो नंबर 1 पे है ही. I think almost 60% companies would ask for Java. Java बहुत पहले से ही Java was like streamlined. तो Java ऐसा है ना कि इंजीनियर्स Java के बहुत ज़्यादा जब बढ़ गए तो Java वैसे भी अडैप्ट भी बहुत ज़्यादा कंपनीज ने कर ली. तो Java फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने सीखना भी शुरू कर दिया. Have a look at Infosys, have a look at TCS, have a look at these companies used to be mass recruiters, right? We used to call them during Mass our recruiter. college days कि भाई mass recruiter है, ये आ जाएंगी, I ये heard ले जाएंगी this. हमें, right? I heard this song, Mass Recruiter सबका मसीहा. I think I have also heard it. और यही था. इतना funny song बनाया हुआ था उस टाइम पे, मतलब it used to roll, right? Yeah. तो आज की डेट में if you have a look at it, I was just going through I was in a college, I was hiring, so they told me कि what TCS is doing right now. तो what they've done is during our time तो ऐसा होता था ना यार कि सिस्टम इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अलग अलग प्रोफाइल्स हैं और आप हायर करते हो और ले लो भाई. सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल पे तो आप सबको ही ले लो, 3-3.25 लाख के पैकेज पे आ जाओ, जो आता है आप आ जाओ. आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, आप CS बैकग्राउंड से हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर, राइट? यू जस्ट कम टू अस, विल टेक यू. आज की डेट में क्या हो रहा है ना कि दिस वाज वेरी इट वाज वेरी अब बोलो थॉटफुल एज वेल फॉर कंपनीज कि वो शिफ्ट हो चुकी हैं इस पैराडाइम से. और अब TCS और Infosys ऑन दी कॉन्ट्ररी दे हायर गुड टैलेंट्स ओनली. मतलब But are they hiring still at 3.5? They are still at 3.5. They are still hiring at 3.5. That's the that is the beauty of it. And they are hiring good talent now. They are not called mass recruiters now. They go to a college. They are not hiring 20, 30 or 50 people or 100 people now in any college, right? They hire a limited set of numbers from good colleges as well. But they hire still. And they hire from any other bands now. Not just 3.5, they're hiring for 8, 6 and 7, 8. Yeah, they go for software engineer profile for 7 or 8, I believe, right? And then they go more as well on team leads, and every single hierarchy they have a hiring drive for every one of them, right? The the important point to note is that they have become selective in getting to hire people. So why not every other employer will also get selective ना. तो अब मार्केट में सब एक तरह ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो मास रिक्रूटर अगर ऐसे रिएक्ट करेगा, आप भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे. तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हायर द बेस्ट टैलेंट, राइट? बिकॉज वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है? वी आर मेकिंग श्योर एट द सेम टाइम कि बेस्ट टैलेंट कहीं जाए ना, ठीक है? इट शुड बेस्ट टैलेंट कम है, इसलिए आप लोग भी स्ट्रगल करते हो एंड एम्प्लॉइज भी स्ट्रगल करते हैं टू गेट जॉब्स. एग्जैक्टली. एंड 5-10 years बैक तभी भी एम्प्लॉयर्स और कंपनीज वर हैप्पी टू ट्रेन देयर एम्प्लॉइज. अभी क्या हो गया, दे वांट ट्रेन्ड एम्प्लॉइज कि भाई फर्स्ट डे आए एंड दिस शुड स्टार्ट वर्किंग. तो अब इस वाले अगर आप मार्केट में इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स, यू नीड टू बी जॉब रेडी द डे, मतलब ऑन डे 1. या तो ये वाला आपको रखना पड़ेगा दिमाग में पॉइंट. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक ऑब्वियसली लाइक एज यू सेड, जावा तो नंबर 1 पे है ही. आई थिंक ऑलमोस्ट 60% companies would ask for Java. I think like 60-65. There is like whatever companies that we see, आप मान के चलिए, it's a huge percentage. Java, then JavaScript. JavaScript. You can say if you have you're eyeing for startups, right? Then HTML, CSS, JavaScript can be a good choice if you are going for front end, right? Okay. So that would definitely be a good choice. And then if you're going for maybe now what you're if we talk about technologies overall, I think JavaScript is a good, if in case you feel that you might not be good in C or C++, right? Then Java might be the language that you can go for. It's still tough. Then if you want to go for even an easier one, JavaScript, HTML, CSS and JavaScript are ये वो languages हैं जो 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाई जाती हैं. अच्छा. हाँ, तो आपको 10th में ही पढ़ाई आजकल के करिकुलम में ये है. मैंने अपने 10th में जावा पढ़ी थी, 10th 11th 12th. तो बहुत ही ज़्यादा सही है. हाँ. अभी फिर 9 10th 11th 12th आई रिमेंबर, है ना? जो कॉमर्स में थे तुम. शी वाज इन माय स्कूल एंड माय कॉलेज, मतलब माय स्कूल इन मेरठ. अगर आपने जावा की थी तो मतलब आपने उसके बाद परस्यू नहीं किया कॉलेज के टाइम पे? तो उसके बाद आई वाज इन कॉमर्स. अच्छा, 12th तक मैंने किया था. बट व्हाट आई रिमेंबर इज मतलब
from that time onwards Java has been ruling. जावा बहुत पहले से ही जावा वॉज लाइक स्ट्रीमलाइंड. तो हाँ. जावा ऐसा है ना कि इंजीनियर्स जावा के बहुत ज़्यादा जब बढ़ गए तो जावा वैसे भी अडैप्ट भी बहुत ज़्यादा कंपनीज ने कर ली. तो जावा फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने सीखना भी शुरू कर दिया. फिर एंड्रॉयड एट द सेम टाइम इज़ जावा. तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए आपको इवेंचुअली जावा की ज़रूरत पड़ती है. तो वो बहुत बड़ा यूज़ केस है एक जावा का अपने आप में. एक ओपन बट सोर्स अगर आपको एनवायरनमेंट. जावा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो यू वुड सजेस्ट HTML CSS JavaScript. Like go for a website development. I think that's the easiest thing that you can go for in terms of front end and in terms of validation. तो अगर मान लो पाइथन है, पाइथन के अभी करिकुलम्स अगर आप कॉलेज की बात करते हो तो 6-6 महीने के होते हैं. पाइथन इज़ अ लैंग्वेज जो अगर आप किसी भी जैसे अगर आप इन्फोसिस में प्लेस होते हैं राइट, तो इन्फोसिस का 5 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें से 2.5 महीने पाइथन चलता है. अच्छा. तो इन्फोसिस का भी पाइथन को लेकर बड़ा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल है. तो अब अगर आपको पाइथन आती है पहले से ही ठीक है, तो इन्फोसिस कैन बी एन ईजियर थिंग टू डू. क्योंकि इन्फोसिस के अंदर भी उनके ट्रेनिंग सेशंस में भी दे हैव अ बैरियर ऑफ पासिंग. तो आपको इतने नंबर चाहिए पास होने के लिए हर एग्ज़ाम में ठीक है. और अगर आप फेल होते हो देन यू गो बैक 2 weeks इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड इफ़ यू फेल थराइज देन मतलब 2 बार फेल हुए ठीक है, तीसरी बार फेल होते हो तो यू आर डन फॉर ठीक है. उनके ट्रेनिंग में भी यही फ्लो रहता है. तो इन्फोसिस ऑल्सो टेक्स 2.5 months टू लर्न पाइथन राइट. तो आपको पाइथन सीखते हुए वैलिडेशन कब आएगा? बहुत लेट आएगा. तो अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कर लेते हो, मैं इसीलिए सबसे 10th के बच्चों को इसीलिए ये सबसे ज़्यादा करवाई जाती हैं ठीक है, क्योंकि इसमें ईजी है. एंड ऑब्वियसली द डिमांड इज ऑल्सो देयर. आई सी अ लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग्स फॉर रिएक्ट एंड इवन फॉर बैकएंड नोड. ये भी बहुत ज़्यादा है. हाँ. बैकएंड के लिए Node.js. Node.js अगर आपका मतलब इफ़ यू हैव गुड हैंड्स ऑन Node.js तो Node.js के लिए इनफैक्ट वी आर ऑल्सो हायरिंग और React.js, Node.js environments. So we hire MERN people a lot ठीक है. तो this is something that we have also तो भी MERN की डिमांड रहेगी. MERN की डिमांड रहेगी. MERN की डिमांड तो आप एक बार आप जाइए, आप फाइवर पे जाइए, मतलब इफ़ यू आर लर्निंग राइट, तो MERN के लिए तो आप देखिए एक बार के लिए हाउ मेनी पोस्ट्स आर देयर राइट. और इट्स जस्ट दैट कि डिमांड है पर लोग करने वाले भी उतने ही ज़्यादा हैं. तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अ बेटर इंजीनियर एट MERN टू गेट सेलेक्टेड नाउ राइट. क्योंकि बहुत लोगों को आती है और फिर बहुत लोग अप्लाई करेंगे एक MERN प्रोफाइल के लिए. वी स्विफ्ट थ्रू hundreds of application in a day. तो कौन सी ऐसा लैंग्वेज है जो थोड़ी डिफिकल्ट टू लर्न है और कंपटीशन भी कम है? I'll say कि Rust is a language जो difficult to learn है. ओके. ठीक है, कंपटीशन कम है बट सैलरीज हैं? सैलरीज अच्छी हैं. रस्ट लैंग्वेज में सैलरीज अच्छी मिल जाएंगी आपको. सैलरीज अच्छी रस्ट गो लैंग्वेज इन दोनों में मिल जाएंगी. रस्ट में इन फैक्ट रस्ट इज़ एक्चुअली लो लेवल लैंग्वेज लाइक C itself. तो उसमें मतलब आप बेसिकली कोर आप बोल सकते हैं कि एक तरह से कोर और बेस लैंग्वेज आप बना सकते हैं रस्ट को. तो आप क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बना सकते हो आप. हाँ, जैसे C++ में आप कर सकते हो राइट. तो आप मतलब आई एम ट्राइंग टू से इट इन वेरी लेमन टर्म्स राइट नाउ. तो टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी. पर रस्ट कैन बी दैट लैंग्वेज राइट. और रस्ट हैज़ बीन लाइक फॉर लास्ट 3 years रस्ट हैज़ बीन रेटेड द टॉप लैंग्वेज that developers want to work with on Stack Overflow. Okay. So Stack Overflow is an environment that a lot of developers will know about. It's a debugging platform ideally. So if you have issues, you've heard about Stack Overflow. ठीक है. तो उस पे it has been rated like the top language for 3 consecutive years. हो सकता है अब चौथा हो चुका होगा. तो अभी जो मुझे समझ में आया है, अगर आपको easy way out ढूंढना है तो आपका सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला रूट है ठीक है. वेबसाइट बनाओ. HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसमें फ्रंट एंड के लिए React.js, बैक एंड के लिए Node.js है ना. यू बिकम अ MERN डेवलपर. बट प्रॉब्लम इज बहुत कंपटीशन है. ईजी है तो ऑब्वियसली वो बैरियर नहीं है, एंट्री बैरियर. तो काफ़ी आपको यहाँ पे कंपटीशन मिलेगा. इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर लेस एक्सप्लोर्ड लैंग्वेज तो आई बिलीव रस्ट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. हाई सैलरीज, लो कंपटीशन एंड ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज वहाँ पे इसलिए ही लो कंपटीशन है बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू लर्न. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. इसके अलावा C++ ऑल्सो इज़ मतलब जावा C++ थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में बट गुड करियर ऑप्शन देयर. Yes. C++ also has a good career option. I think a lot of companies actually demand for C++ also.
तो C++ also has every language I feel It's like not going anywhere. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ना आपको कि यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटी इन ऑलमोस्ट एवरी अदर थिंग, जस्ट हैव टू बी बेटर एट इट. तो अगर आप जावा कर रहे हो तो जस्ट गेट बेटर एट इट. And I think for languages now, for any language for that matter, you have to understand it's all about problem solving. अभी AI है तो कोडिंग तो वो भी कर देगा, ठीक है, डेविन भी कर देगा कोडिंग, बट उसके पीछे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना तुम्हारी, दैट इज़ लाइक द टॉप थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. कोई सी भी लैंग्वेज सीखने से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, है ना. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. अच्छा. ठीक है, मतलब इसी के आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, तब मुझे ना ये समझ में आता हु कैन बी अ गुड इंजीनियर, मतलब जिसको मैं रेट करूँगा, मतलब आई विल से कि यार ये इंजीनियर बहुत अच्छा है मेरी नज़र में, है ना. तो दी ओनली कैटेगरी दैट आई सी even in interviews, even you know when I meet some good developers also, good engineers also, तो मैं उनकी एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही जज करता हूँ उनको कि क्या वो एक अच्छे इंजीनियर हैं या क्या वो बन सकते हैं इवेंचुअली.